हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, देयर इज अ नोटिस फ्रॉम एम्बोस, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड इट इज अवेलेबल इन द एम्बोस website also regarding the improvement for the SSLC class 10 students, those who have appeared SSLC exams, metric exams this year 2021 batch. Now there is a notice regarding the improvement and who are eligible for this improvement. कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है ये इस इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ. तो लेट मी टेक यू टू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड एक्सप्लेन यू अबाउट द notice. So students, this is the notice which has been issued by the Meghalaya Board of School Education. Okay, the notice came on 17th of August 2021. Now this is a notice for improvement actually. It is notified for all concerned that wide regulations for the secondary school examination 2011 and in continuation. ये जो है ये actually जो है ये 1 सितंबर 2016 से ये स्टार्ट हुआ था, ये इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट वाला ये जो थिंग है. ओके, दिस इम्प्रूवमेंट ऑप्शन वाज स्टार्टेड फ्रॉम September 2016 actually, and till now it is being continued. Now here let me read out to you the accordingly following conditions shall apply for those seeking to appear the SSLC examinations 2022 as improvement candidate. So if you wish to improve your marks, okay, it can be one subject also, it can be all the 6 subjects also. If you wish to improve any of your marks, if you are not happy with marks of a particular subject or 2 subjects or 3 subjects, you can apply for the improvement, and that will be known as improvement candidate. You will have to apply under improvement candidate, okay, for 2022 next year's exam. Okay, so जब next year जब मार्च में एग्जाम होगा, when exams will be conducted in the month of March or April, whenever the board decides actually, because COVID time is going on, so the time may change. Now these are the following eligibility criteria. ये वो following eligibility criteria है जो कि आपको ध्यान में रखना है बिफोर अप्लाइंग और वाइल यू अप्लाई. ओके, तो हम लोग देख लेते क्या क्या रूल्स दिया हुआ है नीचे. व्हाट आर द रूल्स गिवन, एंड यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द एम्बोस वेबसाइट. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन डाउनलोड दिस नोटिस फ्रॉम दैट लिंक. नाउ नंबर 1 हम लोग देखते कि क्या होता है. कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड, ये वाला जो रूल है, दिस इज नॉट अप्लाइड फॉर द फेल्ड कैंडिडेट्स. सो ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड, जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम पास किया है, दिस दे कैन अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट. सो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड SSLC एग्जामिनेशन 2021, इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक एग्जाम 2021, जिन्होंने पास किया of the Meghalaya Board of School Education, only are eligible to appear the SSLC 2022 as improvement candidate. ठीक है, तो इसका मतलब फेल स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल एट ऑल. जिन्होंने पास किया and they are not happy with marks of their subjects that they have scored in their subjects, only those past students can apply. They shall avail the provision only once in the ensuing SSLC examination. So this is the one time opportunity that is being given by एम्बोस. ये only once आप apply कर सकते हैं improvement के लिए. You cannot apply again and again. Only this year only you can apply for improvement. ठीक है. Then number 3, candidates wishing to improve upon their marks and wanting to appear as improvement candidate are to take prior permission from the board. So you have to go to the EMBOS and apply there with a written application countersigned by the examination center officers in charge. तो आपको जो है एक application लिखना होगा. You'll have to write a written application and your subject will be that you want to appear as a improvement candidate for SSLC examination 2022. ठीक है, आप इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट के हिसाब से आप जो है एक आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, एंड दैट हैज़ टू बी साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर. जिस एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, द एग्ज़ाम सेंटर वेयर यू हैव गिवन एग्जामिनेशन, ओके, उस एग्ज़ाम सेंटर का जो ऑफिसर इन चार्ज होता है, यू नीड टू टेक सिग्नेचर फ्रॉम हिम. ठीक है, आप लोगों को पता है आपका सेंटर, आपने कौन से सेंटर में एग्जाम दिया था. यू ऑलरेडी नो फ्रॉम विच सेंटर यू हैव गिवन एग्जाम. तो दैट सेंटर्स ऑफिसर इन चार्ज यू कॉन्टैक्ट एंड you write an application, go to him or her, and you get a signature
on below your application, and that you have to submit to एम्बोस. आपको वो जाके एम्बोस में सबमिट करना होगा. ठीक है. फिर हम लोग देखते हैं नंबर 4 में क्या है. द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ परमिशन एप्लीकेशन टू द बोर्ड इज 24th of September 2021. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सिर्फ एक महीना दिया गया है. यू हैव बीन गिवन ओनली 1 month. 24th September के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है. ठीक है. परमिशन एप्लीकेशन जो है आपको बोर्ड में सबमिट करना है. जो एप्लीकेशन दैट यू विल बी taking signature from the officer in charge of the exam center, that application you will have to go to board, emboss and submit there. ठीक है. आप लोगों को समझ में आ गया. तो आप लोग पहले अपने ऑफिसर इन चार्ज जो एग्ज़ाम जिस सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिया उसका जो ऑफिसर इन चार्ज है उसको आप लोग एक एप्लीकेशन लेके उनके पास जाइए, सिग्नेचर लीजिए, एंड देन बाय 24th of September आप एम्बोस जाके वो एप्लीकेशन सबमिट कीजिए. द कैंडिडेट शैल अपेयर इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ओनली. इसका मतलब जो आपका ओल्ड सिलेबस था, से फॉर एग्जांपल आपको पता है 2021 में बहुत सारे जो है डिलीट किए गए थे सिलेबस में से, पोर्शन जो है डिलीट किए गए थे. मेनी पोर्शंस, सम ऑफ द टॉपिक्स वे डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस लास्ट ईयर. बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव दिस ईयर देन यू विल हैव टू स्टडी अंडर द एग्जिस्टिंग सिलेबस. तो अब तक जो सिलेबस चल रहा है, द एग्जिस्टिंग सिलेबस इज़ लाइक देर इज़ नो टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड. कोई भी टॉपिक्स को डिलीट नहीं किया गया है अब तक. तो बाय 24th September अगर आप लोग सबमिट करते हैं और अगर इस साल अगर सिलेबस डिलीट होता है तो आपको उस हिसाब से ही एग्ज़ाम देना होगा. सो इट डज़ नॉट मैटर इफ़ लास्ट ईयर टॉपिक्स वे डिलीटेड एंड दिस ईयर टॉपिक्स वे नॉट डिलीटेड, सो यू विल गिव इन द ओल्ड सिलेबस. नहीं, ओल्ड सिलेबस में आप नहीं दे सकते. आपको जो नया सिलेबस जो है जहाँ पे अभी तक जो है टॉपिक्स डिलीट नहीं किया गया है, आप उसी टॉपिक्स के ऊपर ही आपको एग्ज़ाम देना होगा. ठीक है. एग्जिस्टिंग सिलेबस, करेंट सिलेबस, प्रेजेंट सिलेबस, वो जो भी हो, डिलीट किया गया हो ना किया गया हो, बट यू हैव टू अप्लाई अपीयर इन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंट करेंट सिलेबस ओनली. ठीक है. नंबर 6 हम लोग देखते हैं. नंबर 6 में क्या है. कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर ईदर इन 1, 2 और इन ऑल द सब्जेक्ट. तो ये एक बहुत अच्छा खबर है कि आप एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं, आप 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो यू कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है. दैट इज़ अप टू यू. से यू गॉट 70, से यू गॉट 59, you got 59 in a particular subject, say mathematics, okay, and you feel that I can improve, so you can apply. ठीक है. और से आपको मैथ्स में 59 मिला, फिर आपको जो है 55 मिला आपको इंग्लिश में, 52 मिला आपको साइंस में, तो यू कैन अप्लाई इन ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, 1, 2 और ऑल द सब्जेक्ट्स. कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर subjects involving practical internal shall appear only in theory and previous practical internal marks shall be carried forward. तो यहाँ पे internal mark जो है, जो आपको internal marks पहले दिया गया था, the internal marks that you have got, internal marks is not going to be affected. internal mark जो पहले था वही रहेगा. ठीक है. तो अगर जैसे साइंस में प्रैक्टिकल अगर होता है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिकल इन साइंस, देन यू सी इट डजेंट मैटर आपको जो प्रैक्टिकल में मार्क्स दिया गया था, दैट प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी कंसिडर्ड. ओके, सो देयर विल बी ओनली थ्योरी एग्जाम. तो आपको सिर्फ 80 मार्क्स का एग्जाम लिखना होगा. यू हैव टू राइट ओनली 80 मार्क्स एग्जाम. इम्प्रूवमेंट एग्जाम विल बी ओनली फॉर 80 मार्क्स. आपको जो 20 में से जो मिला था, द आउट ऑफ 20 वॉट एवर यू गॉट, that marks will remain as usual. There will be no change in the internal or practical marks. Are you getting the point? जो internal और practical marks आप लोगों को मिला था पहले, वो वही रहेगा. It will remain same. It won't change. तो आपका जो improvement exam होगा वो आपका 80 के ऊपर होगा. It will be out of 80 only. Okay? And whatever internal marks you got, it will remain same. उसमें कोई internal marks में change नहीं होगा. Internal marks में कोई improvement नहीं होता है. It will remain same. Then a candidate will be issued a mark sheet if there is an improvement in the marks after the improvement examination. तो अगर से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि you scored 59 in maths and you apply for improvement, and after applying for improvement आपने 2022 में आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में ये 59 आपका से फॉर एग्जांपल 75 बन गया, then a new mark sheet will be issued. You will get a new mark sheet. आपको एक नया मार्क शीट मिलेगा और उस नए मार्कशीट में दिस न्यू मार्क्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द न्यू मार्कशीट. तो अगर आपको मार्क्स आपका अगर बढ़ता है, इफ़ योर मार्क्स इम्प्रूव्स, ओनली देन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ अ न्यू मार्कशीट. बट
द बोर्ड शैल नॉट इशू एनी सर्टिफिकेट। अगर आप जैसे आपको 75 मिला तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, यू गेट अ पास सर्टिफिकेट, राइट? ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट, यू गेट अ पास सर्टिफिकेट, नो? आपको एक पास सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस केस में फॉर इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स यू विल नॉट बी इशूड एनी पास सर्टिफिकेट, ओनली मार्कशीट विल बी गिवन। चाहे आपका मार्क्स अगर बढ़ गया तो आपको सिर्फ मार्कशीट दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट अ सर्टिफिकेट, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 9। अगर इन केस से फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स में 59 मिला था, आई एम सॉरी, आपको मैथ्स में 59 मिला था एंड आफ्टर इम्प्रूवमेंट यू गॉट से 35, तब क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, मेनी स्टूडेंट्स आर अफ्रेड दैट देन तो देयर विल बी प्रॉब्लम। अरे आई स्कोर्ड 59 इन मैथमेटिक्स in 2021 and after the improvement my marks became less, हो सकता है, okay, my marks became less, so what is going to happen then? Don't worry, this 59 only will be counted, जो highest रहता है वही count किया जाता है, the highest marks is counted। अगर 59 से 75 हो गया then 75 will be counted, लेकिन अगर marks घट गया से आपको 50 मिल गया, 59 आपने दिया, फिर नेक्स्ट ईयर आपने इम्प्रूवमेंट दिया तो 50 मिल गया, बट डोंट वरी दिस 59 ओनली विल बी काउंटेड, ठीक है? तो यू सी इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग लोअर मार्क्स आफ्टर द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, द अर्लियर रिजल्ट शैल स्टैंड। तो इन एनी केस द हाइएस्ट मार्क इज काउंटेड, कोई भी केस हो वो हाइएस्ट मार्क्स ही काउंट किया जाता है, ठीक है? एंड यहाँ पे जो है कि ऑफिसर इन चार्ज को एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड टू टेक नोट एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू परस्यू द सेम योर कोऑपरेशन। तो जो भी यहाँ पे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मतलब आप लोगों के जो प्रिंसिपल्स है और ऑफिसर इन चार्ज जो एग्ज़ाम सेंटर के ऑफिसर इन चार्ज होते हैं, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि वो लोग जो है अरेंजमेंट करें, नेसेसरी अरेंजमेंट्स करें, स्टूडेंट्स आएंगे आपके पास सिग्नेचर्स लेने, तो बी रेडी, ओके? So this is all, okay? So the last date for applying is 24 September. I will provide you the link so that you can download this notice, okay? So those students who wish to apply for improvement, this is your only chance. You just have 1 month with you. This is your only chance. You can apply for improvement, okay? I hope this is clear. And let me tell you that few things here are not clear actually. Like say for example, ऐसे बहुत सारे दूसरे बोर्ड्स है जहाँ पे जो है से आपको फर्स्ट डिवीज़न या आपको 80 मिला है से फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में, तो 80 इज़ कंसीडर्ड एज लेटर मार्क्स, राइट? तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट नो आई शुड गेट मोर, से आपको साइंस में 80 मिला, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इफ़ आई इम्प्रूव आई कैन स्कोर मोर मार्क्स, बट इन सर्टेन बोर्ड्स इफ़ यू गेट 80 देन यू आर नॉट अलाउड फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता है, ठीक है? अलाउ किया जाता है एक्चुअली किसी किसी बोर्ड में, तो ऐसा भी रूल है कि फ्रॉम 30% टू 59% इनके कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई, फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई दिया गया नहीं है तो मुझे लगता है सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बट ये चीज़ जो है ये आप अपने ऑफिसर इंचार्ज या अपने प्रिंसिपल, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स या दूसरे टीचर्स है जिनका थोड़ा बोर्ड एम्बोस के साथ थोड़ा जो है आना जाना रहता है यू सी, या कोई जान पहचान वाला है, तो आप उनसे कही यू टेल देम टू क्लैरिफाई दिस थिंग टू यू, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच श्योर विद दिस थिंग कि दूसरे बोर्ड में जो है फर्स्ट डिवीजन्स को अलाउ नहीं किया जाता है, ओनली सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड सिंपल जो पास करते हैं ओनली दे आर एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट डिवीजन कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं ऐसे, ठीक है? तो मुझे एम्बोस का पता नहीं, आई डू नॉट नो बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन स्टेटेड हियर, इसको यहाँ पे जो है क्लैरिफाई नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर किसी को 90 मिला है तो विल ही बी एलिजिबल, विल ही और शी बी एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट? आई डोंट नो दिस, ओके? तो यहाँ पे क्योंकि नथिंग अबाउट मार्क्स इट हैज़ नॉट बीन मैंशन, ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पास, तो जिन कैंडिडेट्स ने पास किया है दे कैन ओनली अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर यहाँ पे ओनली पास दिया गया है तो इसका मतलब इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, लेटर मार्क्स, वट एवर, ओके? बट दिस थिंग यू क्लैरिफाई फ्रॉम योर principal, or you can
while applying, you can go to your officer in charge also, and officer in charge of the exam center, and talk to him or her. Okay, or you can talk to your principal or teachers, those who know about this thing. Okay, so anyways, whatever it is, 24th September is the last date. अब देख लीजिए, अगर आप अप्लाई करना चाहिए तो one time opportunity given by MBOS, so if you wish to apply, you can apply. तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा, यू सॉ कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट दिया गया है 24th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो बाय 24th ऑफ सितंबर आप लोग जो है, आप लोगों में से जो जो इम्प्रूवमेंट देना चाहे, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इन एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स, तो आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू विल हैव टू गो एंड सबमिट एन एप्लीकेशन देयर एंड फॉलो। आप लोगों ने तो ऑलरेडी ये जो मैंने आप लोगों को समझाया, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू, सो यू कैन गो अकॉर्डिंगली एंड contact the MBOS office directly for that. Okay, so that's all for me for today. Thank you so much for watching the video. Please subscribe to the channel, like and give your comments on the videos, and that's all. Thank you so much for watching the video. With love from Omnigyan, and all the best.